2 minutes, ma'am. Okay. So Google Certified Educator Pathway. So level 1 is the step 1. Then we have to go for level 2, then trainer, then coach and innovators. So एक करेंगे तो उसके बाद दूसरे के going for trainers, जैसे like I have applied for trainer, I have cleared my assessment for trainer. So जब हम ट्रेनर में जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि यू हैव टू टेक द ट्रेनिंग ऑफ लेवल 1, लाइक आई एम टेकिंग जस्ट नाउ. सो वी हैव टू टेक द ट्रेनिंग्स. आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप ट्रेनिंग ले सकते हो, क्योंकि आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि इसके आगे सारे टूल्स आप सबको समझा सकते हो. नाउ व्हाट इट इज. यस मैम. I have joined with DPS login ID, no problem, no? You don't join the certification course. जो assessment आपके लिए जो हमने दिया है fundamental link, that you have to join with your personal IDs. Classroom not link. School ID. जो classroom में that I have given you a fundamental. Hello. अपने personal ID से. मैम कुछ देर सुनाई नहीं दिया कुछ भी. Now is it clear? Yeah. Okay. जो फंडामेंटल ट्रेनिंग में यहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है, दैट यू हैव टू ज्वाइन. वहां पे आपको मांगेगा कि रजिस्टर कीजिए. दैट रजिस्ट्रेशन यू हैव टू डू विथ योर पर्सनल आईडी, नॉट विथ योर स्कूल आईडी. ओके. नाउ व्हाट इट इज, आई टोल्ड यू. हाउ टू प्रिपेयर इट, आई विल गाइड यू. How to, that also I will guide you. How to register, everything I will be telling you and sending the materials in the classroom, so you can go through it. In case any problem is there, you can ask me. Now, why to become Google certified educator? You gain confidence with digital learning strategies and Google tools. Facilitate and inspire student learning and creativity. Being a teacher, Google कहता है टीचर्स को ही Google certification के लिए मोस्टली वो प्रेशर देता है, क्योंकि वी आर डीलिंग विद चिल्ड्रन. तो जब हमें टूल्स के बारे में नॉलेज होगा, देन वी कैन इंटीग्रेट विद आवर सब्जेक्ट्स एंड वी कैन डील विद मेनी मोर थिंग्स विद स्टूडेंट एंड वी कैन मेक द थिंग्स क्रिएटिव. Now create a paperless classroom, as we all are using Google Classroom and we are having our paperless classroom. Collect data and increase feedback. Learn how to find answer to the support if we need. We have a support of all GGs, Google Educator groups, जहाँ से आपको अगर कोई problem होगी, you will get the answer of each and everything. There are many teachers, like 26 GGs are there, and under their GGs there are captains and co-leaders. So they are going to help you. Everybody is working with Google tools. तो कुछ नया जो भी नया अपडेट्स होता है, we come to know about updates and we will let you know also the same thing. Increasing efficiency and save time. Engage professional growth and leadership. Prove your skill. Get the badge and join certified family. So Google family को आप join कर लोगे जैसे ही आपके certification आपको मिलती है, certificate. Level 1 certification के लिए you have to attend all 5 days. The training is mandatory. Those who have joined today, they will only get that link for other 4 days. Now class code is given here. Many of you have already joined. Those who have not joined will wait at the end. I will let them in the classroom. Now I will be giving MCQs, quizzes for all 5 days. Whatever topic I am dealing with, I will be giving the questions in a Google form or quizzes. ठीक है? You all have to complete that within 24 hours. आप और टाइम ले सकते हो. मैंने लिखा 24 hours है, but you can take 48 hours. लेकिन ये है
कि अगर तुरंत तुरंत कर लेंगे तो वट एवर थिंग यू हैव लर्न वो आप वहां पे चेक कर पाएंगे कि हाँ ठीक है ये पूछा था, ये आता है कि नहीं आता है मुझे, तो असेसमेंट अच्छे से हो पाएगा। कंप्लीशन ऑफ 13 मॉड्यूल्स, जो मैंने अभी फंडामेंटल ट्रेनिंग की लिंक दिया है, उसमें फंडामेंटल ट्रेनिंग आप कंप्लीट करोगे और लास्ट में जब वो देगा कंप्लीटेड टास्क, उसकी एक स्क्रीनशॉट लेंगे और उसको अटैच करेंगे सो दैट आई शुड नो दैट यू हैव कंप्लीटेड योर टास्क। वो तभी आएगा जब आप कंप्लीट करते हो उसको। कीप द स्किल चेकलिस्ट विथ यू रेडी रेकनर, ये चेकलिस्ट मैं हर एक चीज के संग लगाई हुई टूल्स की चेकलिस्ट क्लासरूम में भी दिया है। आई विल बी पोस्टिंग इट जस्ट आफ्टर द ट्रेनिंग, तो वो चेकलिस्ट आप देखते रहिएगा कि ये चीजें मुझे आनी चाहिए। टुडे आई विल बी डीलिंग विद गूगल ड्राइव, गूगल क्लासरूम एंड क्रोम। ओके, 3 थिंग्स डेली आई विल बी डीलिंग विद। अगर कोई बड़ा होता है तो मैं उसके हिसाब से आगे पीछे कर दूंगी। सो फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग विद गूगल ड्राइव। स्मिता मैम, यस मैम। एक छोटा सा डाउट है। मैंने ज्वाइन किया तो मैंने डीपीएस लॉगिन से किया, लेकिन अभी अगर मुझे मेरे लॉगिन से ज्वाइन करना है, वो फर्स्ट लिंक को क्लिक करके करना है? जो वो है मैम फंडामेंटल ट्रेनिंग है। हाँ, तो हाँ, आप फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, अपने लॉगिन से कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो पहली वाली लिंक को ही करना है क्लिक, लेकिन हाँ उसी को करना है, लेकिन पर्सनल उससे करना है। वो रजिस्टर करने को जब बोलेगा तो आपको पर्सनल आईडी से करना है। मैम अभी आप ट्रेनिंग पे ध्यान दीजिए, वो आप बाद में भी कर लेंगी। आई विल वेट फॉर यू, यू कैन डू इट एट द एंड। ठीक है, अभी आप इधर देख लीजिए। So today we will be learning about creating files, accessing files, organizing file, organizing folders, working मोड पे हम डाल कर रखेंगे तो ऑफलाइन में भी हम अपने ड्राइव पे काम कर सकते हैं। शेयरिंग फाइल्स विद स्पेसिफिक पीपल, शेयरिंग नॉन गूगल फाइल। जब हम शेयर करते हैं तो कभी कभी हमने लिंक तो पोस्ट कर दिया, कभी व्यूअर फॉर्म में करते हैं, कभी एडिटिंग में कर देते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। इवन लिंक जब पेस्ट करते हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स आती है। सो वी विल बी लर्निंग अबाउट द शेयरिंग, देन शेयरिंग फाइल एज अ लिंक, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग फोल्डर्स। सो आई एम स्टार्टिंग विथ drives. So let me present my Google Drive so that I can show you. So how to go for drives? देखिए, अगर आप अपने Google प्रोफाइल से लॉगिन किया हुआ है तो आप ड्राइव्स लिखेंगे तो आपकी ड्राइव जो है माई ड्राइव आ जाएगी तुरंत, आप वहां से भी खोल सकते हैं। ठीक, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है you have that 9 waffles here, 9 dots, इसको कहते हैं वॉफल। ठीक है, या गूगल एप्स, आपके क्वेश्चन पेपर में वो वॉफल करके ही आएगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होगा। ये गूगल एप्स भी कहते हैं, इसको वॉफल भी कहते हैं। यहां से भी आप ड्राइव पे जा सकते हैं। सो यू रीच योर ड्राइव, अब ड्राइव में चले गए। कैन यू सी दिस प्लस साइन? दिस प्लस साइन इज यूज्ड टू क्रिएट फोल्डर्स, फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड। I think many of you know how to create files, create folders, everything. अब इसमें जानने की चीज क्या है? You can color your folders. Like जैसे मैंने ये बना के रखा हुआ है, आपकी चीजें इधर उधर मिस हो जाती है, मैनेज कैसे करें उसको। Like लास्ट ईयर की जो चीजें थी उसको हम लास्ट ईयर के फोल्डर में एक बना करके, Ma'am, I am sharing, Kalpana ma'am, my drive screen. You just pin on me if you are on the mobile. It's better if you can use your laptops. Mobile में थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है? So can you see here? I have colored my folders. I have colored the folders और मुझे कोई भी फाइल एक्सेस करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। मुझे मालूम है कि मेरे ड्राइव में ये 2021 के कोई फोल्डर में बहुत सारी फाइल्स हैं, मैं यहाँ से उठा सकती हूँ। आई हैव टू जस्ट क्लिक द फाइल्स। मेरी जो पुरानी फाइल्स हैं यहाँ अपने फोल्डर्स में अरेंज है। मुझे कोर्स मटेरियल कोई पिछले साल का देखना है, आई विल क्लिक। सो हाउ टू गो फॉर इट? यू नो हाउ टू क्रिएट द फोल्डर। आप फोल्डर क्रिएट करते हैं, आपने फोल्डर क्रिएट कर लिया,
आप ड्रैग करके ड्रॉप भी कर सकते हैं, किसी फाइल को आपको ड्रॉप करना है। लाइक मैंने यहाँ पे मान लीजिए 2022-23 की फाइल एक बनाई, मुझे कोई भी पीडीएफ इसमें ड्रॉप करना है इस फोल्डर के अंदर, तो हम कोई भी फोल्डर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे मैंने एक डॉक बना लिया यहाँ पे, ये मैंने ड्राइव में बनाया हुआ है अपने, ये डॉक मैंने इसको दे दिया नाम डेमो, ठीक है। अब डेमो देने के बाद आई केम हियर, इट इज सेविंग माय फाइल, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शंस देते हैं, एक तो स्टार्ट मार्क देता है, एक मूव देता है, और एक देता है कि आप ऑफलाइन देखना चाहते हैं, आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस क्या है, ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। ये आपका मूव है, हम इस डॉक्यूमेंट को चाहते हैं कि मेरे किसी फोल्डर में मूव हो जाए। आपका ड्राइव खुल जाएगा मैम, डॉक में ही। हाँ, इसी डॉक को मैं कहीं भी मूव करना चाहूंगी, मैं मूव कर सकती हूँ। आप यहाँ से बुकफ्लिक्स है, जैसे मेरा कोई है, दूसरा मैं कोई और खोल लेती हूँ, 2021 के फोल्डर में मुझे ये डालना है, तो मैंने यहाँ से उसको मूव कर दिया। अब ये वाली जो मेरी फाइल है वो 2021 के फोल्डर में सेव हो गई है। तो एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। कैन यू प्लीज मैम, डेमो जहाँ पे आपने लिखा वहां से मैंने किया, देन अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, उसको आप एक नाम दे दीजिए, अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट को एक नाम दे दीजिए रिद्धि मैम, 1 2 3 कुछ भी दे दीजिए। ओके मैम। उसके बगल में देखिए आपको 3 चीज दिखेगा, स्टार, मूव और ये। तो आप अपना फोल्डर, यहाँ से किसी भी फोल्डर में आपको जाना है, आप उसके अंदर वो फोल्डर डाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस मैम, थैंक यू। मूव वाला जो ऑप्शन है उसमें जाके। यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, नाउ आई हैव ओपन 2021। हाँ, आपका रह रहा है कि वो हो जा रहा है स्क्रीन का, मतलब नेटवर्क इशू हो रहा है, हम लोग बीच में सुन नहीं पा रहे हैं। एक मिनट मैम, मैं नेटवर्क चेंज कर दे रही हूँ, हो सकता है प्रॉब्लम कर रहा हूँ। मैं मोबाइल डेटा पे आ जा रही हूँ। ओके, अब ये देखिए, ये डेमो फाइल मेरी 2021 में है। अब मुझे लगा कि मुझे यहाँ नहीं चाहिए ये फाइल, मुझे और कहीं चाहिए, तो हम यहाँ से भी इसको फिर से शेयर कर सकते हैं, इसको फिर से मूव कर सकते हैं। हम मूव कर दिए यहाँ से, हमें पास ऑप्शन देगा कहाँ मूव करना है, फिर से वही वाली चीज खुल जाएगी। और इसको मैंने वापस 2023 के फोल्डर में डाल दिया। और अगर आप चाहे तो आप अपना नया यहाँ पे फोल्डर भी बना सकते हैं। मैंने बोला डेमो करके एक फोल्डर है, उसके अंदर डाल दो। मैंने यहाँ पे डेमो फोल्डर बना दिया और इस डेमो फोल्डर के अंदर मैंने मूव करा दिया, मूव। अब देखिए मेरे ड्राइव में ये 2023 फोल्डर है, इसके अंदर डेमो करके एक फोल्डर है, दिस इज द फोल्डर डेमो, जो मैंने अभी क्रिएट किया वहां से मूव करते वक्त, और इसके अंदर वो डेमो फाइल आ गई। क्लियर है? दिस इज हाउ यू कैन मैनेज एंड एक्सेस योर फोल्डर्स एंड फाइल्स। अब अगर आपको इसके अंदर एक और फाइल बनानी है, आप यहां से भी बना सकते हो। एक ब्लैंक स्पेस पे राइट क्लिक करिए तो आप यहां से भी फाइल फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्लस साइन से भी आप क्रिएट कर सकते हैं और कहीं पे भी क्लिक करने से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं वापस हम लिस्टिंग के लिए। अब मैंने कलरिंग बताया था, फोल्डर को कलर कैसे करना है। आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको आएगा रीनेम देने के लिए एंड चेंज कलर के लिए भी। तो यू कैन चेंज द कलर ऑफ द फोल्डर। अगर आपको लगता है कि ये सारे इंग्लिश के मेरे फोल्डर्स हैं तो इसको ग्रीन कलर से कर देते हैं, जिससे कि वो हाईलाइट होगा एंड आई विल बी एबल टू
identify easily, so you can go for it. You can color your folders. इसमें एक और ऑप्शन आता है add to start. add to start कर देंगे, जैसे आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है, उसको हम स्टार्ट करते हैं. जब स्टार्ट कर देते हैं तो वो स्टार्ट फोल्डर के अंदर दिखती है. लेट मी शो यू. जैसे ये मेरा स्टार्ट फोल्डर है, इसके अंदर ऐसी फाइल्स हम रखते हैं जिसको हमें हमेशा यूज करना है. जैसे व्हेन आई वाज टेकिंग कंप्यूटर ऑनलाइन, तो वहां मुझे अटेंडेंस लेना होता था, तो मुझे अटेंडेंस डेली खोलना है, तो मैंने यहाँ पे अटेंडेंस की फाइल रख ली. अरेंजमेंट्स है, अगर अरेंजमेंट लगाना है तो वो फाइल मुझे रोज चाहिए होगी, तो यहाँ मैंने वो वाली फाइल भी रख ली. मिडिल विंग में जितने बच्चे हैं उन बच्चों की लिस्ट मुझे चाहिए होगी, कभी भी किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे चाहिए हो सकता है. तो जो भी फाइल मुझे एक्सेसिबल करना है या मेरी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, उसके लिए हम उसको स्टार्ट कर देते हैं. तो वो फाइल आपके फोल्डर में तो है ही है, लेकिन जब आपने स्टार्ट कर दिया तो वो आपको वहां पे भी नजर आएगी एंड यू कैन इजीली सर्च फॉर इट. देन कम्स देन कम्स माई ड्राइव शेयर्ड विथ मी. अब शेयर्ड विथ मी कभी कभी होता है, बहुत सारी फाइल्स हमें संग शेयर किया जाता है, फाइल शेयर किया जाता है, फोल्डर शेयर किया जाता है, और हम लोग खोज नहीं पाते हैं वो फाइल. यस सोनाली मैम, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? Yes, ma'am. How did you star it, ma'am? You just clicked on the star option. See, when you right click, can you see my Yes, I can see. Okay. When you right click the file, you get a list, drop down list. ठीक है? And then you have an option here to start it. Add a shortcut, add a start. तो वो Ma'am, what does shortcut mean, ma'am? Shortcut में आपकी फाइल यहाँ पे भी रहेगी and you have a arrow against that. तो आपको वो आपकी एक शॉर्टकट बन जाएगी आपके ड्राइव में या किसी फोल्डर में, वहां पे आपको मिल जाएगा. Okay, thank you, ma'am. ठीक है. देन रीसेंट फाइल, जो फाइल्स आपको लगा स्कूल में मैंने बहुत सारी फाइल खोली थी, अब कहाँ खोजे कहाँ चला गया, दैट यू कैन फाइंड इन रीसेंट. तो ये रीसेंट वाले में जितनी फाइल्स आपने आज खोली है वो सब आपको मिल जाएगी. अर्लियर दिस वीक, उसके पहले की भी आपको मिल जाएगी. तो रीसेंट में है. स्टार्ट मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट फाइल्स के लिए. ट्रैश मैंने बता दिया कि जो आप डिलीट करते हो वो फाइल ट्रैश में जाती है एंड देयर इट रिमेन फॉर 30 डेज. 30 दिन के बाद वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है. तो 30 दिन तक आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको रिट्राइव कर सकते हैं. ठीक है. देन अबाउट स्टोरेज, व्हेन यू आर यूजिंग योर पर्सनल अकाउंट, you get only 15 GB storage. But when you are using your school domain account, you are getting 100 GB. तो ये एक बड़ा वाला बैग है, और जब पर्सनल वाला होता है वो छोटा बैग होता है. उस स्टोरेज को भी आप गूगल पे करके उस स्टोरेज को भी आप इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर है. उसके बाद जो मैं बता रही थी ऑफलाइन एक्सेस वाली बात, आप यहाँ से सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में क्लिक करेंगे, यू विल गेट अ बॉक्स हियर. यहाँ पे ऑफलाइन दिख रहा है. इफ यू वांट, मेरे घर में नेट की बहुत इश्यूज है, मैं ड्राइव पे काम नहीं कर पा रही हूँ, तो यू कैन गो एंड क्लिक ऑन दिस ऑफलाइन ऑप्शन. जब आप ऑफलाइन पे क्लिक कर देंगे, यू कैन एक्सेस योर फाइल इन एन ऑफलाइन मोड ऑल्सो. ठीक है, क्लियर है. ओके, नाउ कमिंग टू दिस व्यू, लिस्ट व्यू एंड ग्रिड व्यू. ये देखिए हमारी ये लिस्ट व्यू हो गई, हमें अपने सारे फोल्डर्स और फाइल लिस्ट में दिख रहे हैं. और ये हो गया हमारा ग्रिड व्यू, ये जो हमें अगल बगल दिख रहा है. यू वांट एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी फाइल, यू कैन गेट इट हियर. आपको यहाँ पे आपको फाइल सेलेक्ट करना पड़ेगा. ये फाइल है, इसकी पूरी डिटेल्स मुझे यहाँ मिल जाएगी, कब मैंने क्रिएट किया, इसमें क्या है करके आप सर्च कर सकते हो. किसी फाइल में आपको देखना है कि इस फाइल में क्या क्या चीजें हैं, तो यू कैन गो एंड चेक इट फ्रॉम हियर. ठीक है, ये हो गया डिस्क्रिप्शन. दिस वाज ऑल अबाउट क्रिएटिंग. अब फोल्डर बना लिया, फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बनाते हैं. जैसे बैग के अंदर हम छोटा बैग रखते हैं, मनी बैग,
उसी तरह से फोल्डर्स के अंदर भी हम फोल्डर्स रखते हैं। जैसे आपने देखा था ये मेन फोल्डर्स है मेरे, जिसमें मुझे हमेशा काम करना होता है। अगर पढ़ाने के लिए मुझे ईयर वाइज फोल्डर देखना है तो फोल्डर के अंदर भी फोल्डर है, और इस फोल्डर के अंदर भी फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर भी फोल्डर है। अगर हम काम करना चाहें तो उसके अंदर भी हम फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। क्लास वाइज हमने क्रिएट कर लिया, जैसे कंप्यूटर 2023-22, अब इसके अंदर क्लास 6, 7, 8 के फोल्डर्स मेरे पास पड़े हैं। आप ये भी कर सकते हो। अभी सोनाली मैम जो आप शॉर्टकट की बात कर रही थी, आपने कहा था ना शॉर्टकट, तो ये देखिए जैसे हमारी शेयर्ड फाइल्स होती है, शेयर्ड फोल्डर्स होते हैं, जैसे हमारे कोऑर्डिनेटर्स हमें एक फोल्डर शेयर कर देते हैं और फिर हमें खोजना पड़ता है, शेयर्ड फाइल में जाकर के हम खोजते हैं उस चीज को, तो उसका एक शॉर्टकट वहां पे उस फोल्डर को आप राइट क्लिक कीजिए और क्रिएट अ शॉर्टकट, वो करके आप अपने शॉर्टकट से उसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, उसका शॉर्टकट आपके पास आ जाएगा। नहीं, डेटा मैम तब तक शेयर नहीं होगा, आप वर्क कर लोगे, यू कैन सेव द डेटा देयर, फिर बाद में आप ऑनलाइन करके उसको शेयर कर सकते हैं। यू कैन पर्सनली वर्क ऑन दैट। ठीक है, अभी आप बोल रहे थे जो ये करने के लिए, देखिए ये कंप्यूटर का ये हमने जो शेयर्ड है, ये जो मुनमुन मैम ने शेयर किया था हमारे पास, हमारे कोऑर्डिनेटर से। एक और क्वेरी इसमें है मैम। हाँ जी बोलिए विभूति मैम। आई थिंक मेरे भी नेटवर्क इशू है। ये पूछ रही थी आपने, ये तो कहा डेटा सेव हो जाता है, बट हाउ डू वी रिकॉग्नाइज वेदर हमारा ये ऑफलाइन मोड है या ऑनलाइन मोड है? क्योंकि जब हम डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे होते हैं तो वो कभी कभी स्टेटस अपने आप ही स्टेटस मैंने अभी मैम ये स्टेटस मैंने दिखाया था ना, ये आपका स्टेटस शो करता है, सी डॉक्यूमेंट स्टेटस, ये आपको बता देगा ऑल चेंजेस सेव टू। जैसे अगर हम वेरिएबल डेटा पर होते हैं, चेंजिंग डेटा पे होते हैं, जैसे इस समय हम लोग का डेटा है बीच बीच में आ रहा है जा रहा है, हम दोनों की आवाज बीच में कट रही है, तो अगर इस समय पे इफ आई एम वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट, तो विल द डॉक्यूमेंट कीप ऑन स्विचिंग फ्रॉम ऑनलाइन टू ऑफलाइन ऑटोमेटिकली? नहीं, यू हैव टू मेक इट इन अ वेरी क्विक मैनर। आप यहाँ से स्टेटस चेक कर सकती हैं, ऑल चेंजेस सेव टू ड्राइव, यहाँ पे चेंज हो रहा है, और जब आपने डॉक्यूमेंट को ऑफलाइन मोड पे कर दिया होगा तो ये आपको बताएगा इफ यू लूज एन इंटरनेट कनेक्शन यू कांट एडिट दिस डॉक्यूमेंट, क्योंकि मेरा ऑनलाइन मोड पे है। जब हम ऑफलाइन मोड पे कर देंगे तो आई कैन एक्सेस एंड सेव माय डॉक्यूमेंट थिंग्स। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। आई होप उसका, जैसे मैं हम लोग का अभी लेसन प्लान वाला हमारे टीचर्स ने, कोऑर्डिनेटर्स ने शेयर किया है फोल्डर्स। ठीक है, अब उसमें सबके अपने अपने फोल्डर्स हैं, हमने उस फोल्डर को ही यहाँ पे शॉर्टकट करके, उसका शॉर्टकट बना करके मैंने यहाँ पे रख लिया है 2023। अब ये कंप्यूटर का शॉर्टकट है जहाँ पे मुझे लेसन प्लान हर महीने का पेस्ट करना होता है, और मैंने उसका शॉर्टकट यहाँ पे रख लिया, मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसे एविडेंसेस का है, मैंने उसका शॉर्टकट यहाँ बना के रख लिया है। अब मुझे स्टक हो गई है मैम डेमो, हाँ डेमो वाला ही सिर्फ दिख रहा है। ये देख रही है एरो, यस एरो आपने देखा, ये एरो जो है ये आपको स्टक ये कर देता है कि यहाँ पे ये शॉर्टकट हमने बना दिया। ये शॉर्टकट से हम अपनी फाइल का, वहां पे जो ओरिजिनल फाइल है उसका शॉर्टकट अपने पास रख लिए। अब हम जो भी इसमें काम करेंगे वो उस वाली फाइल में सेव होता रहेगा। ठीक है, क्लियर है? नाउ दैट वाज ऑल फॉर गूगल ड्राइव। मैम शॉर्टकट वाला एक बार एक शॉर्टकट मैं बता दूं? ओके, कोई नहीं। जैसे ये फोल्डर है कंप्यूटर 2023, यार ये डेमो वाला है, मैंने इसको राइट क्लिक किया, ठीक है, ऐड अ शॉर्टकट, शॉर्टकट हो गया। अब ये आ रहा है आपके पास लिंक, कहाँ पे शॉर्टकट बनाना है। मैंने इसको कहा कि 2023 के ही अंदर आईटी इंटीग्रेशन जो मेरा फोल्डर है उसके अंदर शॉर्टकट बना दो। ये यहाँ पे एक शॉर्टकट बना देगा। अब देखिए मैं आईटी इंटीग्रेशन वाले फोल्डर के अंदर जा रही हूँ, ये देखिए डेमो का शॉर्टकट दिख रहा है मुझे। यस मैम। तो ये शॉर्टकट बन गया, मुझे वहां से नहीं, मैं यहीं से खोल सकती हूँ उसको। ओके मैम, ओके ओके, ठीक है, क्लियर है? यस मैम, यस, थैंक यू। ओके, नाउ ड्राइव इज कंप्लीट। नाउ आई एम मूविंग टू गूगल क्रोम। Excuse me, ma'am. Yes, ma'am.
तो इसका मतलब जो शॉर्टकट में हम लोग चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो मेन हमारी जो फोल्डर है उसमें ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएंगे ना? हाँ जी मैम, ओके मैम। आपको पास वो शॉर्टकट है, आप वहां से ओपन कर सकते हैं, वहां पे चेंजेस कर सकते हैं और कर सकते हैं। ओके, ठीक है। थैंक यू। ऑफलाइन का मैम सेटिंग आपको चेंज करना होगा, बस आप उस पर काम कर सकते हो। यस दीप्ति मैम। मैम शेयर्ड विथ मी में ओनली जो शेयर हो रहा है वो चीजें ही देखना होता है ना हमें? शेयर्ड विथ मी में भी आपके फोल्डर शेयर होते हैं मैम, फाइल शेयर होती हैं। उसको सर्च करने के लिए मैं एक बार और दिखा रही हूँ आपको ड्राइव में। अभी मेरी ड्राइव है जैसे ये, ठीक है। अब मुझे अगर सर्च करना है, एक सिंपली हम ऐसे सर्च कर सकते हैं कि मुझे डेमो फाइल चाहिए, जितनी डेमो होगी वो मेरे स्टेटस पे दिखा देगी। एक सर्च में मैंने टाइप कर दिया तो मेरे पास डेमो का शॉर्टकट भी है, डेमो फोल्डर भी है, डेमो फाइल भी है, ये आ गया। अब एडवांस सर्च मुझे करना है तो उसके लिए पहले तो मैंने सोच लिया कि यहाँ पे अगर मुझे मालूम है ये प्रेजेंटेशन है तो मैं स्लाइड में खोज सकती हूँ। स्लाइड क्लिक कर लिया और यहाँ से मैंने टाइप कर दिया स्लाइड में मुझे चाहिए डेमो। तो स्लाइड में अगर कोई डेमो होगी तो मुझे मिल जाएगी, नहीं है तो मुझे नहीं मिल रही है। अब एडवांस सर्च जब हम करने जाते हैं, ये वाली जो लाइन्स है उस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने टाइप डाल दिया, टाइप में मुझे डाल दिया मैंने प्रेजेंटेशन है, ठीक है। ओनर उसका कौन है वो हमें देखना है कि मेरे द्वारा ओन की हुई है या मेरे से किसी ने शेयर किया है। अगर मुझे ये मालूम है कि ये फाइल मेरे स्पेसिफिक पर्सन की है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया उस पर्सन का ईमेल आईडी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया असाइनमेंट करके कुछ भी अगर है उनके दिया हुआ। उसके बाद आइटम नेम डाल सकते हैं, लोकेशन कहाँ पे मिलेगा, थ्रैश में, स्टार्ट में या इसमें सर्च कर लीजिए। आपको अगर कोई भी असाइनमेंट नाम की फाइल होगी जो शेयर्ड होगी, देखिए दे रहा है प्रेजेंटेशन शेयर्ड बाय सुनीपा सान्याल, ये आपको वो फाइल शेयर जो हमें किया है उन्होंने वो सामने आ गई। सो दिस इज हाउ यू कैन गो फॉर एडवांस सर्च, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी। ओके, एडवांस सर्च के लिए वही सर्च वाले बार पर ही हमने क्लिक किया था। हाँ, ठीक है। थैंक यू मैम। यस मैम। नाउ मूविंग टू क्रोम। अब इसमें सबसे ज्यादा गलतियां क्या होती हैं कि हम किसी और सिस्टम पे बैठते हैं तो वहां पे प्रोफाइल अपना ना खोल करके हम नीचे किसी और के लॉगिन में अपना एज अ गेस्ट अपने आप को हम इनरोल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आई विल बी प्रेजेंटिंग माई होल स्क्रीन टू शो दिस। जनरली क्या होता है, नया टैब खोले, माई स्क्रीन इज विजिबल। यस मैम। ओके, नया टैब खोले, हम किसी और के सिस्टम पे बैठे, यहां से हमने अपने आप को ऐड कर लिया, ठीक है ना। ऐड अनदर अकाउंट, यहां से ऐड कर लिया। अब क्या होता है जब हम लॉग आउट करते हैं तो हम उसके अकाउंट को भी लॉग आउट कर देते हैं, क्योंकि बाद में आता है कि लॉग आउट फ्रॉम ऑल अकाउंट, इजंट इट। तो इससे उसकी भी फाइल्स, अगर किसी ने मुझे वर्क करने के लिए जगह दिया हुआ है, इससे उसकी भी सारी फाइल्स क्लोज हो जाती हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि किसी भी सिस्टम पे आप लॉगिन करते हैं तो आप यहां से लॉगिन करेंगे। ये वाली जो ऊपर आपकी फोटो दिख रही है या किसी की भी फोटो दिख रही है, यहां से आप लॉगिन करेंगे एंड यू विल क्रिएट योर ओन प्रोफाइल। यहां से आप ऐड करेंगे, सॉरी बार-बार आ जाएगा, ये प्लस ऐड आ रही है साइन, प्लस ऐड, वहां पे आप ऐड पे क्लिक करेंगे एंड यू कैन गो फॉर योर प्रोफाइल्स। ये देखिए, लेट मी स्टॉप दिस नोटिफिकेशन। +1 दिस इज जस्ट, ठीक है। आप यहां से +1 पे जब करेंगे तो आपका एक प्रोफाइल पूरा खुल जाएगा एंड यू कैन ऐड योर प्रोफाइल्स। अब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा,
वहां पे अपना प्रोफाइल ऐड करेंगे एंड सी नंबर ऑफ पीपल कैन बी एडेड ऑन दिस। यहाँ पे प्लस ऐड किया एंड सेटअप योर प्रोफाइल। यहाँ पे साइन इन किया, जिस अकाउंट से आपको साइन इन करना है वहां से साइन इन कर दीजिए, अपना ईमेल एड्रेस दीजिए, नेक्स्ट आप अपना पासवर्ड दीजिए। पर्सनल हमारा जो है वो भी आप पर्सनल भी कर सकते हैं और एक ही साथ आप कई चीजों पे काम कर सकते हैं। ठीक है, इसी में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप अपने सिस्टम पे 4 प्रोफाइल्स, जैसे आप देख सकते होंगे मैंने यहाँ पे अपना 3-4 प्रोफाइल खोल के रखा हुआ है। ऋषित, मेरे बेटे का भी इसी पे है, मेरा पर्सनल वाला भी इसी पे है, हम उसी पे काम कर लेते हैं, मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक तो यहाँ से हमेशा लॉगिन कीजिएगा। अब दूसरा आते हैं टैब्स पे। ये टैब्स जो आप ऊपर देख रहे हैं ये टैब्स हैं। इन टैब्स में कभी कभी होता है जब हम एग्जाम देते हैं, मेनली जब एग्जाम देते हैं हमारे पास क्वेश्चन पेपर सामने होता है और हमें वर्क करना होता है। गूगल जो एग्जाम देता है, गूगल जो एग्जाम कराता है दैट इज ओपन बुक एग्जाम। ठीक है, ओपन बुक एग्जाम मतलब कि आप बगल में अगर स्लाइड से क्वेश्चन है तो आप स्लाइड खोल करके उस पे काम कैसे हो रहा है वो करके देख करके आंसर कर सकते हैं। यू गेट 3 hours फॉर 90 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चंस, 3 hours फॉर 35 क्वेश्चंस। ठीक, अब उसमें आप कितने घंटे में काम करते हैं उससे ये पता चलता है कि यू आर रिगरसली वर्किंग। गूगल है, गूगल तो तुरंत ही आपको कैच कर लेगा आपकी हिस्ट्री से कि आप कहीं से कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहे हो आंसर को। लेकिन अगर आप स्लाइड पे, अगर आप डॉक पे काम कर रहे हो तो आपकी जो एग्जाम है उसको आपको कहीं पे भी रोकेगा नहीं, अदरवाइज आपका एग्जाम को कैंसिल कर देता है। ठीक है, बट आप गूगल टूल्स खोल करके आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कोई चीज क्लियर नहीं है, कोई ऑप्शन क्लियर नहीं है, तो यू कैन सर्च फॉर इट, वो उसके लिए अप्लाई करता है। तो हमें क्या करना होगा सबसे पहले, क्योंकि हम 2-3 टैब्स खोलते हैं और उस पर वर्क करते हैं, तो उसके लिए हमें अपने टैब्स को पिन करना होता है। तो पिन कैसे, जैसे अगर ये क्लासरूम है, हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया तो मेरे पास एक ऑप्शन बंद हो गया। वेट, okay and your screen is not hi, it's coming ma'am. I stopped the presentation at that time. Okay, now if I have to pin that tab, कि ऐसा कर दे कि वो टैब बंद ही ना हो और हम बगल में 4-5 टैब्स और खोल लें और उस पर काम कर लें, तो राइट क्लिक ऑन एनी टैब जो आपका एग्जाम वाला टैब है या कोई एक ऐसा टैब जिसको आपको बंद नहीं करना है, यू जस्ट गो एंड पिन दैट टैब। जैसे ही आप वो पिन कर देंगे तो ये वाला टैब आपका कॉर्नर में चला गया। कैन यू सी द क्लासरूम टैब हैज गॉन इन द कॉर्नर। अब वो कॉर्नर में चला गया, वो बंद नहीं होगा। आप पूरा सिस्टम भी अभी बंद करेंगे तो बंद नहीं होगा जब तक कि आप अनपिन ना करें। उसमें से क्लोज करने वाला ऑप्शन खत्म हो गया, तो आप वो पिन कर देंगे टैब को, और जब आपका काम हो जाए तो उसको अनपिन कर दीजिए, बंद हो जाएगा। क्लियर है? इसी में यस सोनाली मैम। मैम अनपिन, आर यू विद 2 devices सोनाली मैम? यस मैम। अनपिन कैसे करेंगे मैम? अनपिन करने के लिए फिर उसी टैब पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, पिन है, फिर उसी पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, अनपिन कर दीजिए। क्लियर है? अब ऐड टैब टू रीडिंग लिस्ट, ऐड टैब टू न्यू ग्रुप, ऐड टैब, मूव द टैब टू न्यू विंडो। दूसरे विंडो में कोई टैब को खोलना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, नहीं तो ड्रैग करके भी आप ये वाला कोई चीज भी आपको दूसरे पे ले जाना है तो हम ड्रैग करके भी दूसरे विंडो पे डाल सकते हैं, हमारा टैब दूसरे पे चला जाएगा। और नहीं तो यहाँ से राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट आपको करना है तो न्यू टैब टू राइट, जो भी न्यू टैब खुले वो राइट साइड में ही खुले, तो वो राइट साइड की सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। किसी साइट को म्यूट कर सकते हैं, किसी टैब को डबल 2 बार खोलना है। मान लीजिए मैं अभी गूगल पे एक काम कर रही हूँ, मुझे फिर एक तो डॉक और इसी का सैंपल चाहिए, तो मैंने डुप्लीकेट कर लिया और उस टैब को फिर दोबारा खोल लिया। तो इस तरह से हम यहाँ से टैब से भी काम कर लेते हैं। फिर आती है बुकमार्क की बात। हमें जो जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं हम खोलते हैं, फिर हमें याद नहीं रहता कि हमारी कौन सी साइट है, कहाँ से हमें करना है, तो हम क्या करते हैं, उसको बुकमार्क बना लेते हैं। कैन यू सी द फोल्डर्स हियर? मेरे ये बुकमार्क्स हैं, एक्स्ट्रा बुकमार्क्स भी हैं जो यहाँ पे हैं पड़े हुए। मुझे किसी भी जो जरूरी साइट्स लगती हैं कि मुझे इस पे काम करना है, मैं उसको बुकमार्क बना के रख लेती हूँ।
अब जैसे डीपीएस से रिलेटेड काम है, मुझे अटेंडेंस हमेशा देखना है, मुझे वर्टल पे डेटा देखना है, मुझे जब एग्जाम दे रहे थे थिंक मेरिट में वो भी मुझे हमेशा खोलना था। तो ये सारी चीजें मैंने एक फोल्डर में बुकमार्क करके रख ली है। मुझे कहीं नहीं खोजना कि उसका लिंक क्या है, उस साइट पे कैसे जाए। आई हैव बुकमार्क्ड एवरीथिंग एंड मेड अ फोल्डर कि मैं इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर लूं। तो हाउ टू गो एंड मेक अ बुकमार्क, आपने कोई भी साइट खोली, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया, मैंने सर्च किया बर्ड्स, ठीक है। अब बर्ड्स की विकिपीडिया की साइट खुल गई। ये विकिपीडिया की साइट खुल गई। अब मुझे इसको बुकमार्क बनाना है। यहाँ पे स्टार दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपने स्टार देखा, स्टार के बाद ये आपका पेज बुकमार्क बन गया। अब बुकमार्क का नाम वर्ड विकिपीडिया है, आपको करना है यहाँ पे कोई नाम और दिखना है तो इंफॉर्मेशन वर्ड, हमने वो नाम दे दिया। अब आपको किस फोल्डर में डालना है, उस बुकमार्क बना तो लिया, आपको किस फोल्डर में डालना है, तो यू कैन सेलेक्ट द फोल्डर और यू कैन क्रिएट योर ओन फोल्डर, चूज अनदर फोल्डर। आपने एक फोल्डर बना लिया, यहाँ से यहाँ देखिए न्यू फोल्डर ऑप्शन आता है, न्यू चूज अनदर फोल्डर। आप यहाँ से न्यू फोल्डर बना करके आपने उस फोल्डर का नाम बना दिया। यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए, मुझे अदर बुकमार्क्स में चाहिए, तो यू कैन गो फॉर अदर बुकमार्क्स को क्लिक कीजिए। जहां सेलेक्ट करेंगे वहां न्यू फोल्डर बन जाएगा। वहां हमने डाल दिया डेमो। डेमो डाल करके मैंने इसको जो इंफॉर्मेशन वाली बर्ड वाली थी वो मैंने डेमो में रख लिया। अब ये फोल्डर मेरा बन गया। मुझे अपने, क्योंकि मेरा बुकमार्क का ये जो बार है वो पूरा भरा हुआ है, ये मेरा न्यू फोल्डर यहाँ मुझे दिख रहा है। ये देखिए इस जगह पे अदर फोल्डर्स में था, ये देखिए डेमो मुझे दिख रहा है अदर बुकमार्क में। हम ड्रैग करके इसको यहाँ ला सकते हैं, हम फोल्डर को छोड़ सकते हैं डेमो, और इसके अंदर मुझे इंफॉर्मेशन वर्ड दिख रही है। तो हम जब भी चाहे अपने इंपॉर्टेंट लिंक्स जो हैं, इंपॉर्टेंट फोल्डर, इंपॉर्टेंट फाइल्स, उसको भी बुकमार्क बना करके रख सकते हैं एंड वी कैन गो फॉर इट। क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? हम स्टार पे गए, स्टार पे जाके बुकमार्क, वो स्टार पे क्लिक किया, स्टार पे क्लिक किया, बुकमार्क बार दिखा रहा है, ठीक है। अब आपको बुकमार्क बार में नहीं रखना है, आपने इस पे क्लिक किया, आपको फोल्डर में रखना है। अगर कोई पहले से फोल्डर बना है तो ठीक है, अगर नहीं बना है तो चूज अनदर फोल्डर आ रहा है, वहां जाकर के फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। क्लियर? ओके, नाउ फोल्डर इज डन। उसके बाद आता है एक्सटेंशंस। हमें बहुत सारे एक्सटेंशंस का यूज करना होता है जिससे कि हम इजीली कोई काम कर सकते हैं। इसके लिए है क्रोम वेब स्टोर, ठीक है। यू जस्ट गो ऑन क्रोम वेब स्टोर, यू विल फाइंड ऑल द एक्सटेंशंस जो आपके एड-ऑन्स हैं, जो आपको हेल्प करेंगे किसी चीज में। यू कैन गो एंड सेलेक्ट किस चीज के लिए एक्सटेंशन चाहिए। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, एक्सटेंशन चाहिए मुझे किसके लिए, अटेंडेंस के लिए, ठीक है। अटेंडेंस के रिलेटेड जितने भी एक्सटेंशन होंगे वो मेरे पास आ जाएंगे। ये देखिए गूगल मीट अटेंडेंस, ये जो आया है नया गूगल मीट अटेंडेंस एक्सटेंशन मैंने इसमें डाल दिया तो और आ जाएगा। ये देखिए सारे एक्सटेंशंस आ गए। अब आई कैन गो फॉर इट। जो जनरली मीट पे हम अटेंडेंस लेते हैं उसके एक्सटेंशंस यहाँ पे आ गए एंड यू कैन सेलेक्ट योर एक्सटेंशन। अब इसको ऐड कैसे करेंगे, जैसे अगर मैंने ये ले लिया ग्रिड व्यू, ये वाला मैंने अटेंडेंस का ले लिया, इस पे क्लिक किया तो ये आ रहा है ऐड टू क्रोम। बस आप इस पे क्लिक करेंगे वो आपके क्रोम में ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्रोम में ऐड होने के बाद आपको कहाँ दिखेगा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके प्रोफाइल पिक्चर के बगल में ये दिख रहा है ऐड ऑन बटन एक्सटेंशंस का। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। जिसको आपको यूज करना है बस आप उसको पिन कर देंगे। जैसे ये देखिए अटेंडेंस के लिए मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है, मैंने पिन किया हुआ है, ये अटेंडेंस ऑटोमेटिकली ले लेता है जैसे ही मैंने अटेंडेंस लिया।
ये बेल ऑफ माइंडफुलनेस है जो हमें हमेशा बजाना होता है जब हम HR में माइंडफुलनेस बेल लेते हैं, माइंडफुलनेस की सेशंस लेते हैं, तो उसके लिए ये मैंने पिन किया हुआ है। मोट एक्सटेंशन है, अगर मुझे वॉइस कमेंट देना है अपने बच्चों को, ऑडियो कमेंट्स हम लिख करके कमेंट्स देते हैं, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू लेटर ऑन जब हम डॉक पे काम करेंगे। और ये मोट एक्सटेंशन है जहाँ पे हम ऑडियो कमेंट्स देते हैं वॉइस में, तो आप ऐसे एक्सटेंशंस भी ऐड ऑन कर सकते हैं। क्लियर है? एक्सटेंशंस अगेन, ओके। So for extension, you have to go to Chrome Web Store, ma'am. 1 minute. We did it last year, ma'am, पर अब भूल गई हूँ। पिछले साल बेल ऑफ माइंडफुलनेस, मीट अटेंडेंस ये सब जोड़ा था, पर फिर भूल गई हूँ मैम। मैम भूली क्यों है? इसको सिंक कर दीजिए अपने आपके लैपटॉप में, कहीं ना कहीं होगा, सिंक कर दीजिए। जुड़ा हुआ है पर वो प्रोसीजर भूल गई कि कैसे किया था मैंने। ओके, सो ये क्रोम एक्सटेंशन यहाँ पे दिख रहा है, ये एक्सटेंशंस हैं जो हम ऐड ऑन करते हैं एक्सटेंशन, वो हमें दिखते हैं यहाँ पे। जितना मैंने ऐड टू क्रोम किया है वो मुझे यहाँ दिख रहा है। मुझे जो यूज करना है उसको हम पिन कर लेंगे। अगर मेरा काम खत्म हो गया है तो 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और रिमूव कहाँ से दिख रहा है? 3 डॉट से, 3 डॉट से रिमूव कर सकते हैं मैम। दिख कहाँ से रहा है? ये आपका दिख रहा है, आपकी प्रोफाइल पिक्चर ऊपर देखिए, जहां से हमने प्रोफाइल बनाया उसके बगल में ये दिख रहा है एक्सटेंशन। जो भी हमने क्रोम वेब स्टोर से एक्सटेंशंस लिए हैं वो सारे एक्सटेंशन इसके अंदर रहते हैं। पिन कर देंगे तो वो एक्सटेंशन आपके विजिबल हो जाएंगे। वो इस तरह से दिखेगा, देखिए ये पिन किया हुआ है तो मुझे ये एक्सटेंशन यहाँ पे दिख रहा है। माइंडफुलनेस का एक्सटेंशन जो लगाया है वो अलग बार में दिख रहा है, ये पूरा अलग बार है, इसमें दिख रहा है। ठीक है, तो कोई चीज खोता नहीं है। अगर आप 4 सिस्टम पे काम कर रहे हैं, घर में मैंने लैपटॉप पे काम किया, मैंने बुकमार्क बनाया, स्कूल गए, अब तो मुझे बुकमार्क दिख नहीं रहा है, मैं क्या करूं? आपको कुछ नहीं करना है, अपने प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए, जैसे यहाँ पे सिंक इज ऑन लिखा दिख रहा है, वहां पे अगर आपको आपके बुकमार्क्स नहीं दिख रहे हैं तो सिंक इज ऑफ दिख रहा होगा वहां पे, उसको क्लिक कर दीजिए, वो सिंक हो जाएगा आपके डिवाइसेस के साथ, आपके प्रोफाइल के साथ। आपके सारे बुकमार्क्स, आपको जिस भी सिस्टम पे आप बैठेंगे उस सिस्टम पे आपको बुकमार्क्स दिखने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी काम करने। मैम वो सिंक ऑन नहीं हो रहा है, ऑफ ही दिख रहा है। सिंक ऑन पे क्लिक कीजिए मैम, हो जाएगा। आप बुकमार्क बनाई है? आप बुकमार्क बना के रख लीजिए 2-4। कल कंप्यूटर, स्कूल के कंप्यूटर में जाइएगा, लॉगिन कीजिएगा और वहां से सिंक ऑन कर दीजिएगा। वो सारे जो इस लैपटॉप पे आपने बनाए होंगे वो उस कंप्यूटर पे भी आपको बुकमार्क्स दिखने लगेंगे। ठीक है, सो अब क्रोम इतना ही था जितना मैंने बताया। अभी मैंने आपको मैनेज बुकमार्क बना दिया, इंस्टॉल एंड मैनेज क्रोम एक्सटेंशन बता दिया। अब आते हैं ये जो सर्च बार है, जिसको हम सर्च बार या एड्रेस बार पहले कहते थे, इसका नाम बदल गया है, नाउ इट इज ओमनी बॉक्स। ओमनी बॉक्स क्योंकि क्वेश्चन वो पूछेगा ओमनी बॉक्स से, तो यू कैन बी सरप्राइज कि ओमनी बॉक्स क्या होता है। तो एड्रेस बार जिसको हम पहले कहते थे वो अब ओमनी बॉक्स हो गया है, क्योंकि वहां पे हम सब कुछ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैंने एक नया ये बोलिया, यहाँ पे मैंने कहा 2+2 एंटर कर दिया, ये मेरे पास कैलकुलेटर आ गया और ये बता रहा है मुझे 4 है। ठीक है, मैंने कहा कि डिफाइन, मैंने यहाँ पे लिखा डिफाइन सेल इन बायोलॉजी। अब सेल की डेफिनेशन उसने तुरंत दे दिया। ठीक है, मैंने कहा ट्रांसलेट I am going in Spanish। ये मुझे स्पेनिश में ट्रांसलेट करके दे दिया। तो नाउ इट कैन डू एनीथिंग, दिस इज ओमनी बॉक्स। यहाँ पे आप
कैलकुलेशंस भी कर सकते हो, यहाँ पे आप अपने लोकेशंस भी ढूंढ सकते हो, यहाँ पे आप ट्रांसलेट भी कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी आप सर्च भी कर सकते हो. सो नाउ इट इज ओमनीबॉक्स. क्लियर है? ओके, नाउ कमिंग टू द प्रेजेंटेशन. सो हम लोगों ने यूज ऑफ ओमनीबॉक्स कर लिया. एडवांस सर्च की बात आती है. एडवांस सर्च कैसे करेंगे? जैसे हम इमेजेस खोजने जाते हैं, हमने इमेज लिया, मैंने कहा मुझे गर्ल की पिक्चर चाहिए, ठीक, मैंने गर्ल की इमेज खोजी, गर्ल की इमेजेस आ गई, मैंने इमेजेस पे क्लिक किया. और जनरली हम क्या करते हैं? कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं. यस और नो? यही करते हैं. लेकिन हम ये कहते हैं कि पीछे का बैकग्राउंड भी आ गया है. अब पीछे का बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए, तो हम जाते हैं फिर सर्च में, इसके टूल्स में जाते हैं. जब हम टूल्स में जाएंगे, वी हैव ऑप्शंस हियर. साइज ऑप्शन, मुझे कितनी साइज चाहिए, बड़ा चाहिए, आइकन में चाहिए, स्मॉल चाहिए, तो वी कैन सेलेक्ट एनी साइज फ्रॉम हियर. देन वी गो टू कलर. आई वांट एनी कलर, ब्लैक एंड व्हाइट or transparent. So I want transparent picture. Then I go to tools. मुझे GIF चाहिए, GIF यानी एनिमेटेड, थोड़ा हिलता डुलता वाला. मुझे लाइन ड्राइंग चाहिए, मुझे क्लिप आर्ट चाहिए, यानी कार्टून्स में कुछ ऐसा चाहिए. मैंने कहा मुझे GIF चाहिए. Now I got the GIFs here. अब मैं ये ट्रांसपेरेंट भी आ गया, हिलता डुलता भी आ गया. अब मुझे इसको इंसर्ट करना है. यू कैन सी हियर, दिख रहा है? अब मुझे इसको अपने स्लाइड में इंसर्ट करना है. मैंने यहां से किया कॉपी इमेज एड्रेस. मैंने इमेज का एड्रेस ले लिया. अब मैं एक स्लाइड खोलती हूं. मैंने स्लाइड्स खोल लिया. एक ब्लैंक स्लाइड खोली. इसका लेआउट चेंज किया. मुझे एकदम ये लाइंस नहीं चाहिए, मैंने लेआउट यहां से चेंज कर लिया. मुझे ब्लैंक लेआउट चाहिए. अब मैं इंसर्ट पे गई, इमेज में गई, और जो मैंने कॉपी किया था लिंक, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया. ये लड़की मेरे पास आ गई एंड शी इज ट्रांसपेरेंट. नेट इश्यूज हो रहे हैं, रुक जाइए. कुछ इमेज ऐसे होते हैं जिनकी लाइसेंस नहीं होती है, तो वो नहीं लेता है, इस वजह से नहीं आता है. मैं दूसरी इमेज ले रही हूं. Now I got the image. Now this is transparent. इसके बैकग्राउंड पे भी आप कोई भी कलर कर देंगे तो ये आपका ट्रांसपेरेंट ही दिखेगा. मैम जहाँ से सर्च किया हमने, उसके बाद हम लोगों ने चेंज कहाँ से किया? इट मींस टूल्स में हम जाते हैं. ये देखिए, ये हमने इमेज डाला, इमेज सर्च किया, टूल्स पे क्लिक किया, तो ये ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं. यहाँ पे टाइम ऑप्शन भी है कि कब इसकी अपलोडिंग हुई है. कोई रीसेंट पिक्चर चाहिए तो हम उसके हिसाब से दे सकते हैं. यूसेज राइट्स भी है यहाँ पे कि हमें कैसे चाहिए. नहीं दिख रहे हैं. क्या नहीं दिख रहा? टूल्स. मैम इमेजेस पे क्लिक कीजिए. इमेजेस पे क्लिक गर्ल टाइप की इमेजेस पे क्लिक कीजिए, राइट में जाइए, देखिए टूल्स लिखा हुआ आएगा. दिखा? ओके, सो दिस वाज एडवांस सर्च. आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट विजिबल. कोई बात नहीं मैम, मैं फिर से बता दूंगी. मैम, कैन वी पेस्ट दिस इमेजेस इन गूगल क्लासरूम?
ऑफ कोर्स वी कैन पेस्ट। गूगल क्लासरूम में किसी डॉक पे ही आप पेस्ट करोगे ना, किसी स्लाइड में ही डालेंगे ना। No, when we are giving feedback to students, that time can we use this? फीडबैक में आप इमोजीज ले लीजिए, राइट क्लिक करके इमोजीज आप ले सकते हैं। But I want this one. It is great ना, that's why. कमेंट में कहाँ डालना है मैम, मुझे आप बताएंगे? In stream. स्ट्रीम में डालना है। लेट मी ट्राई। मैंने तो कभी डाला नहीं है, लेट मी चेक। अगर डाल सकते होंगे तो आई विल टेल यू। नहीं मैम, नहीं डाल सकते, वैसे पेस्ट नहीं कर पाते हम पिक्चर्स। हम इमोजीज डाल सकते हैं। यहाँ पे भी लिंक इंसर्ट करने के लिए आता है, लिंक जा रही है मैम पिक्चर की, बट वो नहीं जा रहा। ठीक है, ओके फाइन मैम, ओके ओके। सो नाउ क्रोम इज डन। एनी डाउट इन दिस? मैम वेयर इज ओमनी बॉक्स विजिबल, कैन यू टेल मी अगेन? ओमनी बॉक्स आपके किसी भी मैम, ये जो ऊपर जहाँ पे आप साइट का एड्रेस लिखते हैं, ये जो बड़ा वाला ब्लैक वाला बार दिख रहा है, यस, दिस इज ओमनी बॉक्स। Okay, fine. It's another name of. Okay. Right? Earlier it was address bar. Now it is Omnibox. Okay, ma'am. Okay. Daily updates होते रहते हैं मैम। अभी डॉक्स में भी बहुत सारे अपडेशंस हैं। मैं जब पढ़ाऊंगी तो वो भी आपको बता दूंगी। Now Chrome done. One thing was left. That was in cognitive mode. ये जब आप 3 dots पे क्लिक करते हैं ना, जैसे आप साइबर कैफे में जाते हैं या किसी और के सिस्टम पे काम कर रहे हैं, आप नहीं चाहते कि मेरी डेटा जो है किसी को पता चले, तो देन यू कैन गो फॉर इनकॉग्निटिव मोड। ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपका इनकॉग्निटिव मोड आता है। लेट मी गो टू द न्यू विंडो। I'm not finding it here. New window, new tab. मैम मेरे में शो कर रहा है। कर रहा है ना? हाँ, मेरे में नहीं दिखा रहा है, मे बी कुछ प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे विंडो के नीचे ही आ रहा है सोनल मैम, न्यू विंडो के नीचे ही आ रहा है। हाँ, न्यू विंडो के नीचे इधर ही आता है इनकॉग्निटिव मोड। ठीक है, तो आप इनकॉग्निटिव विंडो, हाँ, आप उस विंडो को खोलोगे तो आप वो ब्लैक कलर का पूरा विंडो देखेगा। आपकी वहां पे कोई हिस्ट्री सेव नहीं होती है। जनरली जब हम एग्जाम दिया था, जब मैंने एग्जाम दिया था, तो हमें सारा चीज इनकॉग्निटिव मोड में ही कराया गया था, क्योंकि वहां पे कोई हिस्ट्री कुछ भी नहीं रह जाती। और वहां मुझे एक नया जीमेल एड्रेस दिया था। अब तो बहुत इजी हो गया, मल्टीपल चॉइस हो गया है कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। उस समय हमें प्रैक्टिकली करके वो चीजें दिखानी पड़ती थी और उसका स्क्रीनशॉट लेके हमें लगाना पड़ता था। दैट वाज डन इन इनकॉग्निटिव मोड ओनली। नाउ इट इज इजी टू गिव एग्जाम्स। ओके, तो मैम वो ब्लैक वाला जो इनकॉग्निटिव मोड, न्यू इनकॉग्निटिव विंडो आया है, हाँ, उस पे आप काम कर सकती। वहां पे आपकी कोई हिस्ट्री या आप कुछ ब्राउज करती हो तो कुछ सेव नहीं होता। ठीक है, ओके ओके मैम, ओके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, बुकमार्क बताना बता दिया, क्रोम स्टोर बता दिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज गूगल क्लासरूम। वी आर गोइंग बियॉन्ड टाइम। इफ यू वांट आई कैन कंटिन्यू, इफ यू डोंट वांट आई कैन लीव। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। व्हाट यू से मैम? बिकॉज 5 मिनट आगे पहुंच जाए, आपको 15 मिनट और दे सकते हो तो मैं रुकूं, अदरवाइज आई विल। नेटवर्क की वजह से आधी चीजें इसमें ही नहीं समझ आई है, पता नहीं। मैम नेक्स्ट क्लास फिर सीखेंगे आज इतने ही अच्छे से। हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके मैम। थैंक यू स्मिता मैम। I am sending a feedback form also about the training. ठीक है, it is there in the classroom also, but I am sending the link right now. Please fill this feedback form so that I can know कि अगले सेशन में मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है, जिससे कि मैं वर्क कर सकूं। The link is in the chat box. Ma'am, we need to improve. No, ma'am.
मैम मैं गूगल क्लासरूम से कर दूं फीडबैक? कहीं से भी कर दीजिए मैम। नाउ सी यू ऑन द सेकंड डे। स्मिता मैम जस्ट अ मिनट, आपने और एक कोई न्यू वर्ड बोला था किसी के बदले में। वॉफल, वॉफल, WAFFLE। और एक बार बोलिए। WAFFLE। यस, दिस इज फॉर 9 डॉट्स, है ना? यस। थैंक यू। आई होप You said, speak again, ma'am. Waffle, ma'am, for 9 dots, from where we search for Google tools. Should I show you again? I hope I was clear. Yes, ma'am. समझ में आया? Okay. So please fill the feedback form. It is going to help me out for the next session. And I need everybody's feedback there. स्मिता मैम। सदाशिव सर बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं, खत्म हो चुका है। हाँ जी मैम।